خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آداب عرض کرتا ہوں اس جلالی نام میں جس کے وسیلہ سے ہم آج تک زندوں اور زندوں کی زمین پر ہیں۔ ہلیلویا۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جب مختلف باتیں، مختلف چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو زندگی جنم لیتی ہے میرے عزیزوں۔ لیکن جب وہی عناصر، وہی اجزاء، جسم کے عضو جو ہیں وہ آپس میں پریشانی کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ تمام اعضاء جو ہیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس چھوڑ جانے کو ہم موت کا نام دیتے ہیں۔ آج کے 2 حوالے ہم نے دیکھے، پہلا زبور 23، دوسرا پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب 13 سے 18 آیت۔ بیٹی سنتیا، میں چاہوں گا کہ آپ پہلا تسلنیکیوں 4 باب اور اس کی 13 سے 18 آیت ذرا اسکرین پر ڈسپلے کر دیجیے گا، بہت شکریہ۔ زبور 23 داؤد کا وہ زبور ہے جو ہمیں تسلی بخشتا ہے، وہ زبور ہے جو ہمیں ہمت دیتا ہے، وہ زبور ہے جو ہمیں اس بات کی آگاہی دیتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب بھی ہم مشکل پریشانی میں آئے اس وقت خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا۔ یہ وہ تسلی ہے جو اکثر و بیشتر ہم اس زبور کو پڑھ کر حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرانے عہدنامہ سے جب ہم عہد جدید میں داخل ہوتے ہیں، جب نئے عہدنامہ کی طرف بڑھتے ہیں تو میرے عزیزوں، پہلا تسلنیکیوں پولس رسول تسلنیکیوں کو خط لکھتے ہوئے اس بات کی آگاہی دے رہے ہیں کہ بے خبر مت رہیے گا۔ کس بات سے؟ کہ ہم نے اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے، ہم نے اس جہان سے جانا ہے، یہ کوئی ہماری مستقل جگہ نہیں ہے جہاں ہم نے رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ پیدائش ہمیں اس جسم میں جسمانی طور پر زندگی میں لاتی ہے، لیکن میرے عزیزوں، جب ہم خدا کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم جسمانی طور پر مر جاتے ہیں اور ایک نئی پیدائش میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یہی زندگی یہاں پر ہمیں پولس رسول اس کی طرف نگاہ دوڑا رہے ہیں، ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پر غور کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے پڑھیں، اس کا پڑھنے والا اس بات کو سمجھ لے کہ جو مسیح یسوع میں پیدا ہو چکا ہے اس پر موت لاگو نہیں ہے، کیونکہ جو یسوع مسیح میں پیدا ہو جاتا ہے، جو اس میں جنم لے لیتا ہے، جو جسمانی پیدائش ہم لے کر اس دنیا میں آتے ہیں، وہ جسمانی طور پر مرتا ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ کیا ہے؟ سوتے ہیں۔ پولس رسول اس طرف دھیان لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری، کہ ہم اس بات کو جان جائیں کہ ہم یہاں پر مستقل نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر غور کریں اس سے پہلے کہ ہمارا وقت آئے، کیا میں اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار ہوں؟ بہن پروین اپنی زندگی گزار کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے، ان کا جسد خاکی سپرد خاک کر دیا گیا جمعرات والے دن۔ یہ جو ہے ایک روایت ہے ہماری، اس کو ہم نے کرنا ہے اور اسی میں سے ہر ایک نے ہو کر گزرنا ہے۔ لیکن پولس رسول تسلنیکیوں کی کلیسیا کو اس وقت یہ کلام تسلنیکیوں کی کلیسیا کے لیے تھا، آج یہ کلام ہمارے لیے ہے۔ 3 باتوں پر ان کا دھیان دلا رہے ہیں۔ پہلی بات، اگر ہم دیکھیں 16ویں آیت میں،
बल्कि इससे पहले भी अगर हम पढ़ें तो वो है जी उठने का वादा। क्या है? जी उठने का वादा। क्योंकि जब यीशु मसीह जी उठा तो क्या जो मसीह में मरते हैं वो मरे रहेंगे, बल्कि वो भी जी उठेंगे। अक्सर और बेशतर मैं इस बात को कोट करता हूं मेरे अजीजों कि यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाकर हमेशा की जिंदगी के लिए क्या किया? वहां से कब्र से बाहर आ गए। कभी कब्रिस्तान से कभी खुशी लेकर आए। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि हम रोते हुए कब्रिस्तान गए थे, उनको दफनाने के बाद वहां से रोते हुए वापस आए हैं। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने क्या किया? कब्रिस्तान से खुशी हमें दिला दी। और वो खुशी क्या थी? कि मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हो गया हूं, मैं यहां नहीं हूं। अभी रिसेंटली हमने क्या किया था? हमने ईस्टर मनाया है। और वो ईस्टर किस बात की गवाही थी? कि वो यहां नहीं है। ये है खुशी। और ये खुशी हमारी जिंदगियों में हमेशा मौजूद रहनी चाहिए कि हमारे यीशु मसीह ने जो जिंदा है, जब वो जिंदा है तो जो उसमें है वो भी जिंदा ही रहेंगे। हालेलुया। और इस बात का इजहार पौलुस रसूल जो है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को दिलाते हैं कि हम सब जो मसीह में मरते हैं, जो कि मरते नहीं बल्कि क्या होते हैं? वो सोते हैं, वो उठ जाएंगे, वो जी उठेंगे, वो मरे नहीं रहेंगे। वो उस हालत में, उस आदम में नहीं रहेंगे जहां पर किसी चीज की खबर नहीं होती। लेकिन पौलुस रसूल इस बात की आगाही दिलाते हैं कि हमें इस बात पर तसल्ली रखने की जरूरत है, उम्मीद रखने की जरूरत है। और वो क्या है? कि हम जो है अगर मसीह में जो है एक दफा दाखिल हो चुके हैं तो हम पर मौत लागू नहीं। दूसरी बात जो कि 70वीं आयत में है, वर्स 17, मैं चाहूंगा जिनके पास कलाम मुकद्दस है जरा इसे खोलिएगा। पहली बात वादा जी उठने का, दूसरी बात यीशु की आमद और बादलों पर इस्तकबाल, द रप्चर एंड द बीटिंग इन द एयर with our Jesus Christ. हालेलुया। हालेलुया। कोई रहनुमाई कर दे जरा अगर 70वीं आई। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी, किनके बारे में कहा गया है? जो बाकी जमीन पर रह जाएंगे। जी, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। क्या ही खूबसूरत बात है। हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा और गहरा वादा। जो लोग मर जाएंगे वो तो जी उठेंगे, जो मरे होंगे वो उठ खड़े होंगे। लेकिन जो जमीन पर है, जो उस वक्त जिंदगी की आलम में होंगे, वो क्या करेंगे? वो फिर बादलों पर उड़कर यीशु मसीह का, इससे बड़ा वादा क्या हो सकता है? क्या हम इस वादे के लिए तैयार हैं? हर एक ਨੂੰ वादा नहीं कीता है, गल जेन च रख लियो जाए। ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो यीशु मसीह में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अल्फाज जरा सख्त है लेकिन कलाम में मुकद्दस है। अगर हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करना चाहते हैं तो हमें कलाम की गहराइयों पर गौर करने की जरूरत है, हमें इसे पढ़ने की जरूरत है। इसे आईना बनाइए, इसके मुताबिक चले, देखें गलतियां कहां हैं, देखें किस वजह से हम खुदा से दूर हैं। अगर हम उन बातों को अपनी जिंदगी से दूर कर लें तो हमेशा की जिंदगी हम सबकी है। हालेलुया। और अगर हमें हमेशा की जिंदगी पानी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जिंदा कलाम के मुताबिक तैयार करें, अपने आप को उस राह पर लेकर चलें जो राह कलाम मुकद्दस सिखाता है। अक्सर बेशतर ऑर्गेनाइजेशंस में वो अपने प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, कई टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें इशिकावा डायग्राम है,
जिसे फिश एंड बोन की डायग्राम कहा जाता है। प्रॉब्लम कहाँ है, कॉज एंड इफेक्ट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं, कहां से आ रही हैं, पीएसडीए साइकिल पर गौर किया जाता है, रूट कॉज एनालिसिस पर गौर किया जाता है। मेरे अजीजों, यहां पर हमारे पास कलाम मुकद्दस एक आईना है। इस डायग्राम को अपनी जिंदगी में उतारें। ये आईना हमें बताएगा कि हम गलत कहां हैं, ये आईना हमें बताएगा कि मुश्किल कहां पे है, ये आईना बताएगा कि रूट कॉज क्या है, और उस रूट कॉज को दूर करने का तरीकाकार भी बताएगा। ये वो आईना नहीं है जो सिर्फ बता देता है चुनिया इतने दाग दबे थे ने। ये वो आईना है जो हमें राह पर चलने का राह भी दिखा देता है। ये वो आईना है जिसके वसीला से हम यीशु की आमद पर बादलों पर उड़कर इस्तकबाल कर सकेंगे और राह पर चलकर उसके नाम को जलाल दे सकेंगे। और इसी तरह अगर हम 18वीं आयत पर गौर करें, वर्स 18, तीसरी बड़ी बात, दो वादे पौलुस रसूल यहां हमें दिखाता है, सिखाता है, समझाता है, और तीसरी बड़ी बात वो हमें कुछ करने को भी कहता है। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। क्या किया करो? तसल्ली दिया। तसल्ली दे कौन सकता है? हाँ जी, जिसके पास तसल्ली कौन दे सकता है? दूसरा करंथियों पहला बाब 4 आयत, जिसके पास तसल्ली होगी वो ही तसल्ली दे सकता है। जिसके पास खुदा है वो खुदा दे सकता है। जिसके पास उसकी दी हुई जिंदगी है वो जिंदगी बांध सकता है। जिसके पास खुदा मौजूद है वो खुदा को जो है दिखा सकता है अपने किरदार के वसीला से। हर कोई तसल्ली नहीं दे सकता, हर किसी के पास तसल्ली मौजूद नहीं है, क्योंकि कलाम उनके पास मौजूद नहीं है। हम तो खुश नसीब लोग हैं कि खुदा का जिंदा कलाम हमारे पास मौजूद है, हमें दिया गया है, ताकि हम उसके वसीला से पहले खुद तसल्ली पाएं और फिर उसके बाद तसल्ली दें। ऐसा वही कर सकता है जो इस कलाम को जानता है, ऐसा वही कर सकता है जो इस कलाम पर गौर करता है। और अगर हमारे पास जिंदा खुदा की तसल्ली है मेरे अजीजों, तो हम फिर तसल्ली भी दे सकते हैं, वरना हजूम ही होएगा। इकट्ठे होंगे सिर्फ अपनी बातों के लिए, तसल्ली के लिए नहीं, अपने गलते गौर खौस करने के लिए सिर्फ इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन कलाम जिसके पास है, मैं अक्सर बेशतर इस बात को भी कोट करता हूं कि जो मेरे को होएगा मैं वही दे सकना। मेरी जेब से 10 पाउंड है ना, तो मैं 10 पाउंड ही निकाल के दूंगा, मैं इससे ज्यादा का वादा नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मेरे पास कलामे खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह की आयात है, उसके मुंह के कलमे मौजूद हैं, तो मैं कलमे ही दुनिया को दूंगा। और आज पौलुस रसूल हमें इस बात को सिखाते हैं। बाजी ने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तौर पर गुजारी। हर कोई अपने जो है हरकत और सकनात से वाकिफ है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि हम कहां जाएंगे। किसी पादरी को जाके पूछने की जरूरत नहीं कि मेरी जगह कितने हुए। आप कलाम पढ़ें, आपको आपकी जगह पता चल जाएगी, आप कहां जाएंगे। आप कलाम पर गौर करें, आपको नजर आएगा कि आप कहां खड़े हैं, कहां खामियां हैं, कहां मुश्किलें हैं, कहां परेशानियां हैं, किस वजह से वो रुकावट जो पत्थर जो है वो बना हुआ है हमारी जिंदगी में। उस रुकावट को दूर करने के लिए कलाम मुकद्दस का आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये क्योंकि अक्सर बेशतर इसे मेमोरियल सर्विस कहा जाता है, लेकिन मैं इसे मेमोरियल सर्विस नहीं कहता, मैं इसे शुक्रगुजारी की दुआ कहता हूं, शुक्रगुजारी की इबादत कहता हूं। क्योंकि हम यहां सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उन बहन के लिए शुक्रगुजारी कर सकें कि जितनी जिंदगी उन्होंने गुजारी बहुत अच्छी गुजारी। और अब जो हम यहां मौजूद हैं इनके वसीला से सीख सकें कि क्या जब ये यहां से जहाने फानी से कूच कर गई हैं, जब मेरी बारी आएगी तो क्या मैं उस हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार हूं। आज का ये सवाल आप सबके साथ जाएगा कि क्या मैं उस हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार हूं। मैं किसी पर उंगली उठाना नहीं चाहता, यह कलामे मुकद्दस है जो आपकी तरफ इशारा करेगा। मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह कलामे मुकद्दस है जो आपको सिखाएगा, समझाएगा
जाएगा कि क्या वाकई ही मैं हमेशा की जिंदगी की तरफ रागिब हूं या नहीं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। I welcome you all in the presence of Lord। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरे अजीजों, इस कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, इस कलाम पर ध्यान लगाना शुरू कर दें, ताकि हम जब इस जहाने पानी से कूच करें, यहां से जाएं, तो हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड जीसस। ये वो बातें थी जो पौलुस रसूल थस्सलुनीकी की कलीसिया को लिखते हुए इस बात की तरफ उनका ध्यान दिला रहा था कि अगर हम एक दूसरे को तसल्ली देना चाहते हैं तो पहले तसल्ली के मंबा की तरफ खुद रागिब हों। अगर हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटना चाहते हैं तो उस मोहब्बत करने वाले शख्स निजात दहिंदे की तरफ रागिब हों, उस मोहब्बत करने वाले खुदा की तरफ रागिब हों, उस ज़ात इलाही की तरफ रागिब हों, उस जमील व जलील खुदा की तरफ रागिब हो जो हमेशा की जिंदगी भी देता है और हमेशा अपने नाम के लिए अपने लोगों को तैयार भी करता है, इस्तेमाल भी करता है और उनकी जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े काम करता है जहां से वो जाने और पहचाने जाते हैं कि ये उस जिंदा खुदा के पैरोकार हैं, उसके जानने वाले हैं, उसके चाहने वाले हैं, उसके पीछे पीछे चलने वाले हैं, उसके कदमों में झुकने वाले हैं। और वो कदम जो बाबरकत है, जिस आप उसकी हदूद का अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमान उसका तख्त, जमीन उसके पांव की चौकी, कहां बैठा है, पांव कहां मौजूद है। आइए उसके हुजूर में आ जाए, उसके नाम को जलाल देने वाले बने। हालेलुया मेरे अजीजों, ये वो बातें हैं जिसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। बात यह है कि हम 18वीं आयत को अपनी जिंदगी में आज यहां से लेकर जाएंगे। जो सवाल मैंने आपके सामने रखा है कि क्या हम इस हमेशा की जिंदगी के लिए या उस बादलों पर उड़कर इस्तेकाल करने के लिए तैयार हैं? एक बात। दूसरी बात, क्या तसल्ली जो खुदा की तरफ से है, जो तसल्ली का मंबा है, वो तसल्ली हमारे अंदर है? अगर है तो फिर कहूंगा बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इस कलाम को अपने अंदर लेना शुरू करें, ताकि इस कलाम के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी हमारी हो। हम जिस्मानी तौर पर जन्म तो ले चुके हैं इस दुनिया में, क्या हम जिस्मानी तौर से आगे भी बढ़े हैं, रूहानी तौर पर भी जन्म लिया है? अगर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो अपने आप को उस रूहानी जन्म के लिए तैयार करें जिसके बाद मौत नहीं रही। क्या होगा कि फिर हम मरेंगे नहीं, हम सो जाएंगे यीशु मसीह में। फिर हमारा चेहरा उसके प्यार से, उसकी बातों से, उसके कलाम से बदल जाएगा, क्योंकि उसका किरदार हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। और जब हम अपनी शख्सियत के वसीला से, क्योंकि हमारे अंदर शख्सियत कौन सी रहती है? कौन सी शख्सियत है? यीशु मसीह की शख्सियत, वो शख्सियत जो हमेशा की जिंदगी दे सकता है, वो शख्सियत जिसमें ना झूठ था, ना फरेब था, ना किसी तरह का जो है और शैतानी तासीरें मौजूद थी, बल्कि उसके अंदर मोहब्बत ही मोहब्बत कायम थी। और उसी मोहब्बत के वसीला से जो है हमें भी वो अपनी तरफ खींचना चाहता है और चाहता है कि हम उस मोहब्बत में शामिल हो जाएं। और जी उठने का वादा जो हमारे साथ था, वो जो पौलुस रसूल बताता है, आमद पर इस्तकबाल करने का जो वादा हमारे साथ है, वो फिर हमारी जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया। और हमारा ईमान है कि हमारी बहन इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में जानती भी थी, पहचानती भी थी और उसी के मुताबिक खुदा की पैरोकार भी थी। और इन्होंने वो अच्छी कुश्ती पौलुस के मुताबिक वो अच्छी कुश्ती लड़ चुकी, लड़कर जो है वो इस जहाने फानी से क्या हो गए? चली गई है। क्या हम अपने लिए ये सवाल अपने लिए हम ये कह सकते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका?
آئیے اس سوال کے ساتھ آج ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور ہم اپنے آپ کو زندہ خدا کی تابعداری میں لائیں گے. ہم اپنے آپ کو زندہ خدا کی طرف لے کر آئیں گے. ہم اپنے آپ کو اس بات کی طرف لائیں گے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو ہے تیار رہیں. ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے. ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے اس کلام کے